हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 3 तक देखा था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 4 विच इज़ व्हाट? Instrument in engine room. The basic instrument in the engine room are pressure gauge, thermometer, level measuring devices. These are the ammeter, voltmeter, power meter. These are the basic instruments in the engine room, which is very important, very crucial, and it is very important to run any machinery, right? So first of all, we are talking about the pressure gauge. What is pressure gauge? It is used for measuring the pressure. It is used for measuring the pressure. What is the unit of pressure gauge? Unit is bar, kg per centimeter square, pound per square inch. Pound will be denoted by the lb. Pound will be denoted by the lb. So you can see in a gauge like this also and like this also. Psi and pound per inch square both are the same. Psi stands for pound per square inch and it is also denoted by this, and one more unit is kilopascal. You can see in the gauges kilopascal, psi, kilopascal, psi, right? So instead of this, you can also find the kg per centimeter square. You can also find the bar. So now we have to know which one is the largest unit of pressure measuring unit. So bar is the largest one and psi is the smallest one. Bar having a 1 bar is equal to 14.26 psi, and kg per centimeter square is slightly equal to the bar, right? So the greater one is a bar and the second is kg per centimeter square and the smallest unit is psi. Understood everyone? Now we are going to talk about the types of pressure gauge. Types of pressure gauge में first one is the pressure gauge. Pressure gauge is used to measure the above atmospheric pressure. What is above atmospheric pressure? सबको पता है, हमारे ऊपर एक एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर होता है जिसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, जो कि सी लेवल से जब आप ऊपर जाते हो तो कहते हैं कि दबाव बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो जब आप सी लेवल से ऊपर जाते हो, जितना ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। तो वो जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो हमारे ऊपर वियर करता है, हमेशा हमारे ऊपर रहता है, उससे इंक्रीज जब होगा तो उसको हम प्रेशर गेज से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? प्रेशर गेज से मेजर करते हैं। उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर नीचे प्रेशर जा रहा है तो हम लोग किससे मेजर करते हैं? वैक्यूम गेज से। किससे मेजर करते हैं? वैक्यूम प्रेशर गेज से। एंड देयर आर द प्लेसेस वेयर द बोथ प्रेशर कैन बी covered or coming, like below atmospheric pressure also are there and above atmospheric pressure is also there. So if the both pressure are coming, then we can use the compound pressure gauge. Now look at the pressure gauge. First gauge showing it's a pressure gauge. It's what? Pressure gauge. How can we find out it's pressure gauge or not? Look at this needle go the clockwise direction. If needle goes to the clockwise direction, that means it is the pressure gauge. This is what? Pressure gauge. Another thing what you can find in a gauge, all the reading in the positive, all the reading in this gauge is positive. So there are two ways to find out the whether pressure gauge, whether vacuum gauge, whether compound pressure gauge. One is what? Needle will be rotate in the clockwise direction and all the measurement will be done in positive. Look at the vacuum pressure gauge. Needle will go anti-clockwise direction. Needle will go anti-clockwise direction and the all reading will be in the negative mark. All the reading will be in a negative mark. Come on the third one. Third one is the compound pressure gauge. Third one is the compound pressure gauge. How will you find out this is compound pressure gauge? Look at the needle. Look at the needle. Needle can go in clockwise direction and also it can go in anti-clockwise direction.
if it will go in the anti-clockwise direction, it will shows the vacuum pressure, and when it will goes to the clockwise direction, it will shows the positive pressure. Right? Clear everyone? Now एग्जामिनर आपको क्या पूछ सकते हैं, व्हाट एग्जामिनर कैन आस्क, वो आपसे रीडिंग पूछ सकते हैं, कहीं पे भी मार्क कर सकते हैं कि इस जगह पे आप रीडिंग बताइए। तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट ऑफ द गेज। लीस्ट काउंट ऑफ द गेज, लीस्ट काउंट क्या होता है दोस्तों? लीस्ट काउंट होता है जो भी मिनिमम वैल्यू आप मेजर कर पाओ किसी पर्टिकुलर स्केल से। जरूरी नहीं है वो प्रेशर गेज हो, वो स्केल भी हो सकता है, वो थर्मामीटर भी हो सकता है, वो एम मीटर भी हो सकता है, वो वोल्ट मीटर भी, एनी काइंड ऑफ गेज यू हैव, उसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू यू कैन मेजर, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्केल। हर स्केल का लीस्ट काउंट बदल जाएगा। लुक एट द स्क्रीन, हाउ कैन यू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट? जो भी फर्स्ट नंबर लिखा हो, जो भी फर्स्ट नंबर लिखा हो, लाइक हियर व्हाट इज रिटन 10 psi, always use the unit, without unit the number is alone, अकेला है वो किसी काम का नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि वो 10 बार है कि डिग्री सेंटीग्रेड है कि किलोमीटर है कि सेंटीमीटर है? यू कांट फाइंड आउट विदाउट द यूनिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन द, जो भी पहला नंबर लिखा हो उसको यूनिट के साथ लिखिए 10 psi एंड डिवाइडेड बाय द डिवीजन। 0 से लेके 10 के बीच में कितने डिवीजन आपको चलना पड़ा 10 तक पहुंचने के लिए? तो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। There are 10 division in between the 0 and the 10. So divide the 10 by the 10. What you will get? 1 psi. What you will get? 1 psi. So one line value is 1 psi. Suppose examiner will give you the थर्ड लाइन आफ्टर द 20, मतलब 20 के बाद तीसरी लाइन अगर वो आपको बोल रहे हैं कि मेजर करिए, तो एक लाइन का वैल्यू हमें पता है 1, यहाँ 10 लिखा है, यहाँ 20 लिखा है, तो थर्ड लाइन विल बी 21 22 23। 23 will be the answer, but 23 alone is incomplete. It can be answered like 23 psi, 23 psi. Understood? प्रेशर गेज में जरूरी नहीं है सिर्फ psi हो, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, किलो पास्कल पास्कल भी हो सकता है, बार भी हो सकता है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। सो वट एवर रिटन ऑन द गेज यू हैव टू टेल टू द एग्जामिनर। राइट? come on to the vacuum pressure gauge. Look at the screen. What is the first number? Minus 20 kilopascal. So count the division: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. There are also is 10 division, but first number is minus 20. So 20 kilopascal divided by 10, how much you will get? 2 kilopascal. So one line value is what? 2 kilopascal. So अगर एग्जामिनर आपको बोलते हैं 40 के बाद फोर्थ लाइन का वैल्यू बताइए, तो कितना हो गया? 20 40 42 44 46 48 minus 48 kilopascal. अब now in a vacuum gauge you can say you can tell the answer in two way. One is minus 40 kilopascal, or you can say 40 kilopascal vacuum pressure. सो अगर आपने वैक्यूम प्रेशर बोला तो माइनस बोलने की जरूरत नहीं है, माइनस बोला तो वैक्यूम प्रेशर बोलने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर समझ जाएंगे कि वो वैक्यूम प्रेशर की बात हो रही है। नाउ लुक एट द कंपाउंड प्रेशर गेज। कंपाउंड प्रेशर गेज में आप देखोगे कि इधर का लीस्ट काउंट अलग आएगा, इधर का लीस्ट काउंट अलग आएगा। इधर देखिए 1 2 3 4 5, सो 5 डिवाइडेड बाई 5 इज व्हाट? 1। सो इधर इन प्रेशर साइड, पॉजिटिव प्रेशर साइड, वन लाइन की वैल्यू कितनी है? 1 psi, 1 psi। सो अगर आपको एग्जामिनर ने बोला 15 के बाद थर्ड लाइन, तो 15 16 17 18 psi इज विल बी योर आंसर। अगर हम बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव प्रेशर की, तो यहाँ पे लीस्ट काउंट हो जाता है 2। कैसे? 10 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5। So 10 divided by 5, the one line value or least count of the negative pressure gauge is minus 2 psi. अगर आपको एग्जामिनर बोलते हैं 20 के बाद सेकेंड लाइन की वैल्यू बताइए,
तो 20, 22, 24 minus 24 psi or 20 psi vacuum pressure. You can say like this. Understood everyone? So these are the three pressure gauges which is used in the engine room. Now one question can be asked by the examiner कि what liquid fill in the pressure gauge and why. आपने देखा होगा, आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, ऑन द फर्स्ट गेज यहाँ एक बबल टाइप का बना हुआ है. बबल टाइप का मतलब इसमें कुछ फिल किया गया है, कोई लिक्विड फिल की गई है. वो लिक्विड है आपका ग्लिसरीन. वो क्या है? ग्लिसरीन. वाई वी आर फिल द ग्लिसरीन इन द प्रेशर गेज? बिकॉज जब आपका प्रेशर मशीन चलेगा तो निडल आपकी क्या करेगी? फ्लक्चुएट करेगी. फ्लक्चुएट करने की वजह से आप एग्जैक्ट प्रेशर नहीं कैलकुलेट कर सकते, मेजर कर सकते हैं. तो ग्लिसरीन क्या होता है? गाढ़ा लिक्विड होता है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से निडल का जो वाइब्रेशन है वो न के बराबर हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. So you can find the measurement very easily by the help of glycerine. Understood everyone? Next is what? Thermometer. Thermometer. What is thermometer? Measure the temperature of the engine room, machinery temperature, or any kind of temperature. If you want to calculate, you have to use the thermometer. Now what is the unit of thermometer? Degree Celsius, Fahrenheit, right? One is more Kelvin. So Kelvin is used for the numerical purpose, it is not used for the measuring purpose. So only two unit we have, one is a degree Celsius and degree Fahrenheit. Now first one is what? Pocket thermometer. Types of, if we are talking about the types of thermometer, first one is the pocket thermometer. What is pocket thermometer? Look at this. This is your pocket thermometer. Why its name is pocket? Because the pocket will be generated in the machine by itself ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग. एंड जो ये स्क्रू दे रखा है, इस स्क्रू से मशीन में थर्मामीटर टाइट हो जाता है, जिससे कि वो मशीन का जैकेट टेम्परेचर आपको बताने में हेल्प करता है. और ये पॉकेट में मशीन के बॉडी में ही पॉकेट बना होता है, इसीलिए इट्स नेम इज व्हाट? पॉकेट थर्मामीटर. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? hanging thermometer. Its another name is scoop thermometer. Listen guys, you have to know the all the names of any tool or any devices or instrument, because examiner can ask in any name. Maybe it can be asked about scoop thermometer, maybe he can ask by the about the hanging thermometer. You have to know all the names, right? So basically hanging thermometer is used for the measuring the engine room temperature or any compartment temperature. Why its name is hanging? Because जिस रूम में भी आप इसे हैंग कर देंगे, टांग देंगे, उस रूम का ये टेम्परेचर आपको बता देगा. दैट्स व्हाई इट्स नेम इज व्हाट? hanging thermometer. Now come to the third thermometer, that is pyrometer. What is pyrometer beta? Pyrometer is used for the exhaust gas temperature, measuring the exhaust gas temperature. इंजन रूम में एग्जॉस्ट कहाँ कहाँ से निकल रहा है? मेन इंजन, जनरेटर इंजन, and boiler and incinerator. But incinerator not have a such kind of temperature required to measure, so we can use this pyrometer in exhaust gas temperature of the main engine, generator engine, and boiler. Now okay, and one more confusion is having while you are look at the screen. Look at the screen. In a pyrometer you can find out, in pyrometer it's look like a pressure gauge. How can you identify its pressure gauge or pyrometer? There is the unit is defined. Here is the unit is defined, degree Fahrenheit and degree centigrade. By that you can find out its pyrometer or pressure gauge. Next is what? Next is what? इंफ्रारेड थर्मोमीटर. इंफ्रारेड थर्मोमीटर सबने देखा है कोरोना टाइम में, जिसको देखो उसके पास गन जैसी एक टेम्परेचर सेंसर मशीन थी, लेजर लाइट डालते हैं और आप में टेम्परेचर ले लेते हैं, राइट? सो इट इज वाई वेयर इट इज यूज ड्यूरिंग वॉच कीपिंग. You cannot find out everywhere temperature by the pocket thermometer. So at that place, like you want to measure the pipe temperature, motor temperature, or any machinery heating or not, so that time you can place the laser on that particular area. You can find out the temperature by the help of infrared thermometer without touching the machine. Understood everyone?
Understood? So all these four thermometers are used in the engine room. Next topic we have measuring instrument. Before that we will complete the voltmeter. Voltmeter is used for measuring the voltage. जैसा कि आपको पता है आपके घरों में समरसेबल लगा है, उसका जो स्टार्टर बॉक्स होता है या स्टेबलाइजर होगा घर में, उसमें आपने देखा होगा वोल्ट मीटर लगे हुए, उसमें आपने देखा होगा वोल्ट मीटर भी और एम मीटर भी, वोल्ट मीटर भी एंड एम मीटर भी. बोथ आर वोल्ट मीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द वोल्टेज एंड एम मीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द करंट. वोल्टेज की यूनिट क्या होती है बेटा? वोल्ट होती है, और इसको डिनोट किससे करते हैं? वी से करते हैं. एम मीटर की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, और इसको डिनोट किससे करते हैं? ए से करते हैं. Sorry. So these two, and one more is there, that is power meter, which is used for measuring the power, and the unit of power is kilowatt. We will discuss later. Understood everyone? Next, what we are going to start, that is level measuring device. What is level measuring device? Level measuring device क्या होता है? There are so many places we required to know the level, because precautionary we have to fill that area, that tank, by the fuel or lube oil or fresh water. So at that places we have to know the level. So what we have to find out the level of these tanks and areas. So first we have a level gauge. Level gauge we have which is used for measuring the level in a sump or level in the small tank. Level gauge basically used for the depth of 1 to 2 meter. Level gauge is basically used for the depth of 1 and 2 meter. कहाँ यूज होता है ये आपको इमरजेंसी जनरेटर के फ्यूल टैंक में देखने को मिल सकता है, फ्रेश वाटर जनरेटर में देखने को मिल सकता है. वहां पे हम लोग लेवल चेक करने के लिए यूज करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज व्हाट? साइड ग्लास. साइड ग्लास सबने देखा है, घर में आरओ वाटर का फिल्टर लगा होगा, उसमें सामने से एक ट्रांसपेरेंट ग्लास छोड़ा जाता है ताकि आप वाटर का लेवल देख सको. डेट इज ओनली द साइड ग्लास. अनदर एग्जाम्पल, आपके घरों में कूलर होगा प्लास्टिक वाला, प्लास्टिक वाले कूलर में भी थोड़ी सी जगह बची रहती है, ट्रांसपेरेंट होता है ताकि आप देख सको कि वो कूलर में कितना पानी है, हाउ मच वाटर इन योर कूलर, राइट? सो दैट इज ऑल्सो साइड ग्लास. सबके पास पल्सर, अपाची या टीवीएस की कोई भी बाइक या कोई भी रेसिंग बाइक होगी जिसमें डिस्क ब्रेक लगा होगा, तो उसके हैंडल के बगल में एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें भी ब्रेक ऑयल होता है. ब्रेक ऑयल को देखने के लिए छोटा सा ग्लास लगा होता है. देखा होगा? अगर सबने नहीं देखा होगा तो आप देखना, अगर आपके आसपास बाइक है, आपके पास बाइक है जिसमें ये चीज लगी हो, देखिएगा आप लोग. दैट इज ऑल्सो नोन एज द साइड ग्लास. Okay, and it is used for the medium level small tanks like compressor, like a purifier, okay, like a lathe machine. You can find out the side glass, and it is used for the 25 to 30 centimeter depth of tank. Next is what? Dipstick. Dipstick भी सबने देखा होगा घरों में, अपने गांव में समरसेबल पंप होता है, पंप सेट होता है, जिसमें आप डीजल को चेक करने के लिए कितना डीजल है आप एक स्टिक डाल के देखते हैं. दैट इज स्टिक नोन एज द डिप स्टिक. स्कूटी होगा तो स्कूटी में लूब ऑयल, सम किसको कह रहे हैं? जहाँ पे लूब ऑयल होता है इंजन में, जहाँ पे लूब ऑयल होता है, तो लूब ऑयल का लेवल लेने के लिए, सम्प ऑयल का लेवल लेने के लिए उसमें डिपस्टिक लगा होता है. वहां से आप देख सकते हैं हाउ इट्स लुक डिपस्टिक. ओके, सो दिस इज द dipstick. It is also used as the same place like side glass, but side glass हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे कोई भी इंटरनल मशीनरी पार्ट इज नॉट रोटेटिंग और कनेक्टिंग विद द दैट एरिया. लाइक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका कुछ मशीनरी पार्ट रोटेट हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग साइड ग्लास यूज करते हैं. जहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टेक्ट को होने के चांसेस न के बराबर है, वहाँ पे हम लोग डिपस्टिक यूज करते हैं. बट बोथ आर यूज्ड फॉर द 25 to 30 सेंटीमीटर टैंक. साउंडिंग टेप इज द लार्जेस्ट टैंक मेजरिंग लेवल मेजरिंग डिवाइस. जैसे आपका 2 मीटर से ज्यादा या 100 टन से ज्यादा उस टैंक में है लिक्विड,
तो ऐसे टैंक में हम लोग मेजर करने के लिए साउंडिंग टेप का यूज करते हैं। सामने ये ब्रास का एक मेटल पार्ट होता है जो कि बॉब जिसे बोलते हैं, BOB बॉब। वाई इट्स कनेक्टेड विद द साउंडिंग टेप? बिकॉज ऑफ जब आप टैंक के अंदर स्टील के स्केल को एंटर करेंगे तो क्या होता है प्रॉब्लम कि वो फ्लोट करने लग सकता है, वो सीधे बॉटम पे नहीं जाएगा। तो हमें कुछ भारी वेट चाहिए जो कि सीधे बॉटम तक जा सके। तो वो बॉब होता है जिससे कि हम लोग जो कि वो पूरा टैंक के बॉटम लेवल तक जाता है। तो बेसिकली इसको बॉब बोलते हैं एंड इट इज यूज फॉर द मेजरिंग लार्ज टैंक एबव द 2 मीटर टैंक, एबव द 2 मीटर टैंक। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट इज साउंडिंग रॉड। इट इज यूज फॉर मेजरिंग द लेवल ऑफ स्मॉल टैंक्स। कैसा दिखता है? ये एक स्टिक की तरह होता है। दर्जी के पास आपने देखा होगा मेजरिंग स्टील स्केल होता है, 2 मीटर लंबा होता है और उसको अंधे की लाठी की तरह फोल्ड भी किया जा सकता है, तो उसको साउंडिंग रॉड कहा जाता है। इस ये 52 से 2 to 50 टन टैंक के लिए सुटेबल होता है और बेसिकली अप टू 2 मीटर डेप्थ तक की हाइट है। तो एट दैट प्लेस यू कैन यूज द साउंडिंग रॉड। अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट इज व्हाट? बॉयलर गेज ग्लास। बॉयलर गेज ग्लास हमारा बॉयलर में लगा होता है। बॉयलर के फीड वाटर को चेक करने के लिए लगा होता है ताकि आपको पता रहे कि ड्रम में वाटर है कि नहीं। बॉयलर ड्रम में वाटर नहीं होगा तो बॉयलर में आप फर्नेस जल रही है, आपके पास फर्नेस के पास वाटर नहीं है हीट करने के लिए, तो इट विल बी हीट द पाइप एंड इट कॉज explosion in the boiler. So make sure when you are in watch you have to be checked properly water level by the help of boiler gauge glass. One more level gauge is there, that is called remote level indicator. That is what? Remote level indicator, which is used for the closed tank, which is used for the closed tank. कहाँ यूज होता है वो भी आपने देखा है, बहुत अच्छे से देखा है। कार में आप फ्यूल कहाँ डलाते हैं? पीछे, बिहाइंड द बैक सीट, राइट साइड में। और रीडिंग कहाँ देखते हैं? इन फ्रंट ऑफ स्टेयरिंग, इन फ्रंट ऑफ स्टेयरिंग। सो रिमोट लेवल इंडिकेटर का मतलब होता है कि रिमोटली ऑपरेटेड या रिमोट इंडिकेटर का मतलब क्या है? मशीन कहीं और है, आपका इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट कहीं और है और आप उसको ऑपरेट कहीं और से कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड द रिमोटली ऑपरेटेड सिस्टम। सो रिमोट लेवल इंडिकेटर का मतलब आप फ्यूल टैंक कहीं और है और उसका लेवल कहीं और जाके ले रहे हो, कहीं और से ले रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड रिमोट लेवल इंडिकेटर। अब जैसे फ्यूल टैंक है या केमिकल टैंक है, आप बार बार उसमें लेवल लेने के लिए साउंडिंग टेप नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि साउंडिंग टेप भी डैमेज हो सकता है। प्लस फ्यूल टैंक है, स्पार्क जनरेट हो सकता है और फायर लग सकती है, ब्लास्ट हो सकता है। सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग so many times the sounding tape. We have in a tank what is that is remote level indicator. फ्यूल हम वहाँ पे या लिक्विड वहाँ पे फिल करेंगे टैंक में और लोकेशन हम कहीं और देखेंगे। बाइक में भी आप देख लीजिए, टैंक में टैंक आपके सिटिंग पोजीशन के पास होता है और लेवल आप चेक करते हो ओडोमीटर के बगल में। तो वो हो गया ना, डिस्टेंस हो गई, लेवल आप कहीं और चेक कर रहे हो, फ्यूल कहीं और भरा रहे हो। तो एट दैट प्लेस वी आर यूजिंग द रिमोट लेवल इंडिकेटर। अब इसमें एग्जामिनर क्या पूछ सकते हैं? एग्जामिनर पूछते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेवल मेजरिंग डिवाइस, यू हैव टू नो वेरी वेल, राइट। नेक्स्ट पूछते हैं कि अगर ये मेन इंजन का सम्प ऑयल किससे चेक किया जाता है? तो जो मेन इंजन का लूब ऑयल सम्प होता है वो 2 स्ट्रोक इंजन का, उसका जो सम्प ऑयल होता है 2 मीटर से ज्यादा उसका डेप्थ होता है, उसमें 100 टन के आसपास फ्यूल होता है, सॉरी लूब ऑयल होता है। उसको चेक करने के लिए हम लोग साउंडिंग टेप का यूज करते हैं। और जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है, जनरेटर इंजन, उसमें हम लोग लेवल चेक करने के लिए डिपस्टिक का यूज करते हैं। क्लियर एवरीवन? One more question is asking in this chapter. This is actually 12th chapter. We will conclude this chapter in along with the 4th chapter. So don't find out 12th chapter in other video. 12 and 4 are a combined chapter. Understood everyone? One more question is asking what is the safe level of the side glass? What is the safe level of side glass or dipstick? What is the safe level of side glass and the dipstick? होता क्या है बेटा कि
साइड ग्लास में और डिप स्टिक में लो मीडियम हाई 3 लेवल्स होते हैं। क्या क्या होता है? लो, मीडियम, हाई। लो हम रख नहीं सकते, हाई करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? हाई करेंगे तो ओवरफ्लो हो सकता है, रोलिंग पिचिंग के टाइम पे बार बार लीकेजेस हो सकते हैं, स्पिल हो सकता है जिसकी वजह से फायर हजार्ड हो सकता है, स्लिप हो सकता है। देयर आर सो मेनी डिसएडवांटेज ड्यू टू द हैविंग अ हाई लेवल ऑफ ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ ऑयल। सो लो नहीं रख सकते क्योंकि लो लेवल अलार्म आएगा, मशीन को प्रॉब्लम होगी, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, स्लाइटली एबव देन मीडियम रखते हैं। एक्चुअली में आंसर क्या है? मीडियम होना चाहिए, बट एग्जामिनर को आप क्या बताओगे? स्लाइटली एबव देन मीडियम, बिकॉज ऑफ जब आप मशीन को ऑन करोगे, आपका सिस्टम रनिंग में आएगा, तो जितना स्लाइटली एबव, थोड़ा सा ज्यादा आपने ऑयल रखा है एज पर द ग्लास, एज पर द लेवल, वो थोड़ा सा ज्यादा किस में चला जाएगा? लाइन में चला जाएगा, पाइप सिस्टम में चला जाएगा। सो आफ्टर ऑल आपको क्या दिखेगा कि लेवल आपका मीडियम में है, तो दैट इज द सेफ लेवल फॉर द साइड ग्लास एंड अ डिप स्टिक ऑल्सो, दैट इज द सेफ लेवल। अंडरस्टूड एवरीवन? So now we are going to conclude the chapter 4 and 12. If any doubt you can ask in the chat section. I will reply to you guys. देखिए जीपीआर ऑलरेडी इतना ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया जनरेट हो रहा है, मार्केट में उतनी जगह नहीं है, बट आपको क्या करना है? डटे रहना है, अच्छी नॉलेज लेनी है, अच्छा स्किल लेके जाना है शिप पे। आप अच्छे स्किल के साथ जाएंगे तो आपका ग्रोथ बहुत जल्दी होगा, बहुत अच्छा होगा। आप सोच रहे होंगे कि नहीं बस चले जाएंगे काम चलता रहेगा, नहीं बेटा, वहाँ काम करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसी चीज का आपको पैसा दिया जा रहा है। तो यू हैव टू टेक नॉलेज एंड स्किल। सो फॉर दैट you can learn from my channel or anywhere, that is no issue, but you have to learn, because you will survive only if you have a knowledge and skill. Understood everyone? So good night for today, right? We will meet in a next video, and we are trying to cover, because exam is going to coming in June, so we will try to cover the important oral question as per the examiners. So in next video we will discuss about the important oral questions. Remaining chapter will continue after the exam, or I will try to cover all the chapters before the exam, but few my students are demanding that कि सर ओरल इम्पोर्टेंट ओरल क्वेश्चन पे एक वीडियो बना दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द इम्पोर्टेंट ओरल क्वेश्चन, बिकॉज एग्जाम इज गोइंग टू कमिंग अप, right? So good night everyone, have a take care, thank you.